everyone. A very good evening to all of you guys watching over here for this particular session, waiting for me to just bring you and talk about how to score 80 plus in your chemistry paper. Since after 3 days you are going to have your JEE main examination. So it was actually important to talk to you regarding your score, how you are going to score 80 plus in the chemistry paper. So dear ones, be there, lend me your ears, and yes, listen to me till end, that what all things you need to have, you need to actually apply in order to go for 80 plus score. Dear ones, before we move ahead and talk about the strategy, let me tell you one thing, that if you feel that this particular session is really useful for you guys, then please don't forget to hit the like button, subscribe the channel, share this particular session, and of course, do comment in the comment box. Well, dear ones, one more thing I want to talk about is that Aakash Byju's has brought to you an app for your JEE as well as NEET preparation. This particular app is your one-stop solution for your preparation journey, and this particular app comes with the plenty of unique features. By now, most of you might have explored this particular app, and you actually have seen that this particular app includes daily quizzes, skull crashers, I mean to say the toughest problems, okay? Moreover, you might have also explored that you have the short tricks and the formulas too in this particular app. Also, the animated videos of the complex concepts, which is actually making your concepts very, very easier. So what are you waiting for? Just please download this particular app, explore this particular app, and enjoy your learning. Boost your preparation for your examination. Well, by now, since you have explored the app, you might have actually seen that this particular app, if I just talk about, we do have the live classes. And those live classes is actually based on dual teacher model. Okay, you actually get a chance to interact with your live faculties. The star educators like Shishir Mittal sir, Dr. Sachin Kapoor sir, NV sir, Apurv Mathur sir, and many more. So what are you waiting for? Just download this particular app right now, go for the free trial, and yes, enhance your preparation. You need to outsmart your competitors. So here we are with this particular app. So my dear ones, this was all about what I want to talk about for boosting up your preparation. Moving ahead, and let's talk about the strategy in order to score 80 plus in your chemistry examination. First of all, let's talk about the super important topics in physical chemistry. The most super important topics which you need not to leave. You cannot afford to leave them. Okay. Since it's basically the revision thing going on. Okay, it's the revision basically going on. So what you need to revise in the topmost priority is what we talk about here for physical chemistry. See, if I just talk about states of matter, wherein we talk about the gaseous state as well as the liquid state also, but 95% of the concepts we learn for the gaseous state when we talk about states of matter. So you can expect one question from states of matter. See, we do have 3 parts of the chemistry: physical, organic, and inorganic. And in your JEE main examination, you are going to get 30 questions. Out of those 30 questions, you need to attempt 25 questions. So if we divide those 25 questions into 3 parts, in a way, you are going to get 8 questions, okay, from your each section, okay. One section may have 9 questions. But if I just talk about the equal weightage, equal partition, it's basically the 8 questions. Talking about states of matter, I already told you कि यहाँ से आपको एक question short आएगा, and that too kinetic theory of gases. क्लियर है? मोस्ट चांसेस जो ज्यादा है कहां से क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ. स्टेट्स ऑफ मैटर, 1 क्वेश्चन. ओके, टॉकिंग अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर. Okay, talking about chemical thermodynamics, you can expect 1 question, और कभी कभार 2 questions भी आ जाते हैं. Lee-Chatter's principle पे based, degree of freedom पे based. Talking about ionic equilibrium, yes, अगर मैं ionic equilibrium की बात करती हूँ तो यहाँ से भी आप मान के चलिए कि 1 से 2 questions आपके यहाँ पर भी आ जाएंगे. मूविंग अहेड, और बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री से कभी क्वेश्चंस आते हैं, कभी क्वेश्चंस नहीं आते, तो 0 to 1 आप मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन या
कुछ भी नहीं आ सकता है. टॉकिंग अबाउट सॉलिड स्टेट, अगेन सॉलिड स्टेट के बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगी, एक क्वेश्चन दैट टू आप मान के चलिए, जैसे हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी की, क्लियर, वहां से क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल बेस्ड. फाइन. Moreover, since we talk about many types of the unit cells in solid state, तो वहां पर how many particles, number of particles if I just talk about are involved in this particular unit cell, so and so, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. स्ट्रेट अवे क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ. तो एक क्वेश्चन आप सॉलिड स्टेट से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. केमिकल काइनेटिक्स 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 क्वेश्चन. क्लियर, डन, ये बात समझ में आ गई. ठीक है, तो जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं छोड़ना है. ठीक है, डन. तो एक तरह से आप देख लीजिए, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट कि किस पर्टिकुलर चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं. ओके, इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन द पैटर्न विच आई एक्चुअली स्टडी from the previous year question papers, so don't miss them. Well, एक और चीज बताना चाहूंगी, स्टोक्योमेट्री. स्टोक्योमेट्री से भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पर काफी कुछ आपको देखने को मिल सकता है. वेल, वो क्वेश्चन इजी होगा. यू नीड टू जस्ट अप्लाई योर ब्रेन एंड सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, तो ये बात की हमने फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में. वेल, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं, सो जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाले आपके चैप्टर्स होने चाहिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करती हूँ, इन दोनों को अगर मैं लेके चलती हूँ, तो मान लीजिए यहां से 2 to 4 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्लियर. बात करते हैं हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स की. एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो. ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर मैं बात करती हूँ, तो ये इसके लिए मैं सिर्फ आपको एक एडवाइस दूंगी, सजेशन दूंगी. सिंस बाय नाउ मोस्ट ऑफ यू हैव स्टडीड NCERT लाइन बाय लाइन फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट्स एक्चुअली इनफ. अगर हम ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करती हूं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अ हॉट टॉपिक, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डी एंड एफ ब्लॉक को कंबाइन करके भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, है कि नहीं. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहां से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो जब रिवीजन करेंगे तो प्लीज डू रिवाइज देम. ठीक है. वेल, चिलपिल ले लेना, आई मीन टू से ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम बिगड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. सो विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट ओवर थिंकिंग मच, आप रिवीजन वाले मोड में ही चल रहे हैं. ठीक है, तो आपको अपने जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको आपको इन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी वाइज रिवाइज करना है, नथिंग एल्स. ओके, आपको सिर्फ अपने पेजेस फ्लिप करने हैं, बिकॉज अब वही टाइम है कि जब अपने पेजेस आप फ्लिप कर रहे हैं. मैं यहाँ इसलिए आई हूं, वो भी आज, जस्ट टू एक्चुअली मेक यू अलर्ट कि इन टॉपिक्स का रिवीजन छोड़ के मत जाइएगा. ओके, सो ये एक अलर्ट है आप लोगों के लिए. टॉकिंग अबाउट आयुपेक नॉमेनक्लेचर, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में. चलिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आयुपेक नॉमेनक्लेचर से भाई एक क्वेश्चन तो आता ही आता है. आता है कि नहीं आता? आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो आपने सॉल्व किए ही हैं, तो आपने देखा है कि एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट भाई आता ही आता है. ठीक है, आयुपेक नॉमेनक्लेचर हो गया, जीओसी हो गया, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं. आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस तो कम कॉम्बिनेशंस में आते हैं. जैसे अगर मैं हेलोजेंस की बात करती हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजेंस, हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेरीन्स, यहीं से यू एक्चुअली गेट अ क्वेश्चन जहां पर आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन भी वो बीच में डाल देते हैं. तो एक तरह से अगर मैं इन 3 पर्टिकुलर टॉपिक्स की बात करती हूँ, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चंस. ठीक है, आयुपेक नॉमेनक्लेचर में आपको एक और बात बता देती हूँ, कॉमन नेम्स प्लीज रिवाइज करना, क्योंकि पेपर के अंदर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कॉमन नेम्स पे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. आपको आता है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कॉमन नेम के बारे में पता ही नहीं होता है. तो अगर कॉमन नेम आपको पता नहीं है कि वो किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो प्लीज आप कॉमन नेम पढ़िएगा. एनसीईआरटी के अंदर जब स्टार्टिंग के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर काफी सारे कंपाउंड्स के कॉमन नेम हैं. ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू देम.
प्लीज इसको मत भूलिएगा, अदरवाइज आता आता क्वेश्चन रह जाएगा आपका. सो वी डू नॉट अफोर्ड टू डू सो. ठीक है, ये भी एक अलर्ट पॉइंट है, कॉमन नेम्स. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजेंस. ठीक है, अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजेंस की बात करती हूँ तो आप शॉर्ट एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यहाँ से एक क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, यहां से इन दोनों से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब बात अगर मैं करती हूँ हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन्स जो हम 11th में पढ़ते हैं वहां से भी आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट मिल ही जाएगा. ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, आपने जरूर एक ट्रेंड देखा होगा, जेल्डाल मेथड्स एंड ड्यूमास मेथड पे एक न्यूमेरिकल आ जाता है. तो भाई अब रिवीजन कर ही रहे हैं आप. ठीक है, सिंस रिवीजन आप कर ही रहे हैं तो क्यों ना जेल्डाल मेथड्स और ड्यूमास मेथड के एक बार न्यूमेरिकल्स देख लें. क्वेश्चन अगर आ गया डायरेक्ट तो आपके लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सीधे 4 मार्क्स आपकी पॉकेट में होंगे. ठीक है, तो मैं कहूंगी कि ऐसे बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स हैं. ठीक है, यहां से आप मान के चलिएगा कि आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे. बायोमोलिक्यूल्स में अभी आपने ट्रेंड देखा होगा 18, 19, 20. ठीक है, आपने देखा होगा एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है, आता है ना. तो प्लीज इसका रिवीजन प्लीज करके जाएगा. स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन होता है, इजीली सॉल्व हो जाएगा. सिमिलरली पॉलीमर्स के साथ भी ऐसा ही है. ठीक है, इनके रिवीजन में आपको ज्यादा टाइम लगने भी नहीं वाला है. फाइन, सो गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग. तो यहां मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में जो टॉप मोस्ट सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका रिवीजन आप मिस नहीं कर सकते हैं, वो आपको करके ही जाना है. ठीक है, सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. दैट मीन्स इस समय ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनका रिवीजन छोड़ के मत जाइएगा. ठीक है, आराम से कूलली, कामली, पेशेंसली रिवीजन कीजिए, फ्लिप इन कीजिए पेजेस को, इजीली रिवीजन हो जाएगा. ज्यादा स्ट्रेस भी लेने की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है. वेल डियर वंस, इतना तो मुझे ये भी पता है कि आप लोगों ने अपने सेल्फ नोट्स बनाए होंगे, तो आपको रिवीजन अपने सेल्फ नोट्स से ही करना है. सेल्फ नोट्स बनाए होंगे, उन सेल्फ नोट्स से भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ईच एंड एवरी चैप्टर के, है कि नहीं. तो बस उन्हीं के पेजेस को फ्लिप करना है. इवन आपने फॉर्मूला शीट भी तैयार की होगी. फॉर्मूला शीट मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी हमारे पास फॉर्मूलेज हैं उनकी फॉर्मूला शीट तो रेडी है ना आपके पास में, बस उसको भी प्लीज रिवाइज करके जाना ही जाना है. डन. ठीक है, ये चीज आप लोगों को करनी ही करनी है. वेल, मैं आपको कुछ एक्चुअल में इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताना चाहती हूँ, लास्ट मिनट टिप्स मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ. तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट दोज पर्टिकुलर टिप्स. सबसे पहले, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, डोंट ओवर थिंक. ज्यादा आप लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं है. आपको सब कुछ आता है, घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप अगर स्ट्रेस लेंगे तो आपके लिए ही ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा. ओके, सो आराम से मोटिवेशनल वीडियोस देखिए. ठीक है, सॉन्ग्स सुनिए, अपने ब्रेन को थोड़ा चिल पिल कीजिए. ओके, स्ट्रेस फ्री रहिए, गेट रिलीव्ड फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस. ठीक है, ज्यादा मत सोचिए, यू नो ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो व्हाट आई वांट टू से दैट बिलीव, it's a saying that believe you can. Believe you can and you are halfway there. Isn't it? Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज. टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है. प्लीज, टाइम मैनेजमेंट में मैं सिंपली आपको ये कहना चाहूंगी कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू इन्वेस्ट मोर देन 45 मिनट्स फॉर केमिस्ट्री. क्या मैम, आपने क्या कहा? हाँ जी, आपने सही सुना. यू कैन नॉट अफोर्ड टू इन्वेस्ट मोर देन 45 मिनट्स फॉर केमिस्ट्री. क्यों? क्योंकि 30 to 40% ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं केमिस्ट्री में, इट्स बेसिकली थ्योरेटिकल, विच यू कैन एक्चुअली इजिली अटेम्प्ट. आप बहुत इजिली उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं. अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए. ओके, एंड यू कैन अटेम्प्ट देन करेक्टली विद इन अ मिनट. आपको 1 मिनट पूरा भी नहीं लगेगा और आप उसको करेक्टली अटेम्प्ट कर देंगे.
बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं 1 घंटा फिजिक्स को देंगे, 1 घंटा हम देंगे मैथ्स को, 1 घंटा हम देंगे केमिस्ट्री को। अरे नहीं, आप 45 मिनट से ज्यादा टाइम केमिस्ट्री में प्लीज मत स्पेंड कीजिएगा। वो जो 15 मिनट्स बच गए हैं उनको स्मार्टली आप अपने दूसरे 2 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? वेल, ये एक पर्टिकुलर सेइंग है। क्या है सेइंग? दैट you can basically talk about that minute. I just want to say one thing, that since I just said you can easily attempt correctly within a minute without wasting a single minute. Well, every second saved is every second earned. In the examination, अगर आप 1 सेकेंड सेव करते हैं, इसका मतलब आपने 1 सेकेंड अर्न कर लिया है. So, you have to go by this particular way. फाइन. सो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है. समझ गए आप? यस मैम, बिल्कुल समझ गए. लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन सिलेक्शन. सेक्शन सिलेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर? सबसे पहले आपको क्या करना है? यू नीड टू बी एक्चुअली थॉरो विद योर क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल थॉरो अप हो जाइए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, देखिए कि किस पर्टिकुलर पार्ट में कितने क्वेश्चंस आपको इजीली एक्चुअल में 1 गो में हो जाते हैं. ओके, देन सिलेक्ट योर सेक्शन. फाइन, कि भाई मुझे ऑर्गेनिक करना है, कि भाई मुझे केमिस्ट्री करना है, या फिजिक्स करना है पहले, या मैथमेटिक्स करना है पहले. फाइन, क्लियर है? तो सेक्शन सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. तो एक तरह से ट्राई टू सॉल्व द इजीएस्ट क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, जब आप एक बार पेपर से थॉरो अप हो जाएंगे तो आपको पता तो चल जाएगा एक ही नजर में कि कौन से क्वेश्चंस मुझसे एक ही गो में सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, सो पुट योर ऑल द एफर्ट्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, अबाइडिंग बाय द टाइम लिमिट. ध्यान रखिएगा इस बात का. सो आई जस्ट से फॉर द केमिस्ट्री आपको 45 मिनट से ज्यादा तो नहीं देने हैं. ये माइंडसेट अपना लेके चलिएगा. ठीक है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए आपका काफी सारा टाइम उसमें चला जाएगा. आप डिप्रेस हो जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे, एंड इट विल बी अ ब्लंडर इन द एग्जामिनेशन. Fine? Yes, ma'am. So you have to read all the questions carefully first and then solve the easy question first and then proceed further. इजी क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे. वही मैंने आपको बोला, अगर 1 सेकेंड बचाओगे इसका मतलब 1 सेकेंड आप अर्न कर रहे हो. तो वो जो 1 सेकेंड है वो काम आएगा आपके नेक्स्ट पर्टिकुलर सेट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर. ठीक है, सो यू नीड टू डू दी सेक्शन सिलेक्शन बेसिकली. Okay, well my dear ones, you need to stay motivated. ठीक है, you can do it and you will do it and you will come out with the flying colors. I know better than you. ठीक है, so एक बात और हमेशा याद रखिएगा, that don't stop when you are tired. It's a saying that don't stop when you are tired, stop when you are done. ठीक है, मेरा ये कोट यहां पर कहने का मतलब ये है, रिवीजन अच्छे से कर लीजिए एंड देन चिल मारिए. रिवीजन बहुत इजीली होगा, जल्दी होगा, सिंस आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो. सो नाउ इट्स द टाइम टू टेक अ चिल पिल. ओके, सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड. ओके, एंड स्टे मोटिवेटेड. फाइन, डन. सो डियर वंस, व्हाट at last I want to say is stay positive, work hard, and yes, make it happen. You can do it. I have a belief on all of you guys. So all the best for your examination, and yes, prove yourself. Believe you can, and you are halfway there. Fine. Bye bye dear ones. Take care and all the best.